بدماشوں کا ساتھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے سر. باقی جو کیا کرتی ہیں میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ میسج دیتا ہوں, ہم آپ کو نہیں بھولیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ایک دن آئے گا کہ ہمارا ہاتھ, ہمارے سے ملک پولیس کا ہاتھ ان کے گریبان میں, اور یہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کیونکہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ظلم کا دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. جو لوگوں کو کالز کرتے ہیں, بتے لیتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, یاد رکھیں اگر فرعون نہیں رہا, ابو جہل نہیں رہا, بڑے بڑے ظالم نہیں رہے, تو قاری بٹ نے کیا کرنا, متین بٹ نے کیا کرنا, سب ختم ہو جائے. اگر رہنا تو اللہ کا نام لینا اور آپ کی زندگی, اور ڈسٹرکٹ پولیس آپ کے ساتھ رہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے, کسی کا ڈر نہیں. یہ وہ افسر ہے, یہ فراز ہے, یہ ولی پاک ہے, یہ سجاد ہے, یہ ڈی ایس پی, کوئی اور تو نہیں آیا نا, کوئی اور تو نہیں ہے یہاں پہ بیٹھا. یہی لوگ فیصلہ کرتے, اور ہم نے اپنے اعمال سے مرید کے لوگوں کو بتایا ہوا. یہاں پہ اسی شہر میں 10-10 ہزار روپے پہ لوگ مرڈر کرتے ہیں, دیکھے نہیں آج وہ کدھر. لیکن کرائم روکنا یہ دعویٰ ہم نہیں کرتے, لیکن یہ دعویٰ ہم ضرور کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم محنت سے, ایمانداری سے آپ کی زندگی میں امن لانے کی بھرپور کوشش. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹی شیخ پورہ کی آبادی 5 ملین کراس کر گئی. ہماری ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 2300, جس میں سے 300 ڈرائیورز ہیں. آ جاتے ہیں کتنے, 2000, جس میں سے 250 ایلیٹ ہیں. باقی کتنے بچتے ہیں, 17.5 میں سے 400 کورس کی ڈیوٹیز پہ لگیں. کتنے لگیں, 1300 میں سے جو 200 ہے آفس ڈیوٹیز پہ لگیں. کتنے لگتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ ہم کم ریسورسز میں آپ کے لیے کیا کچھ کریں. ڈسٹرکٹ پولیس ہمارا پراؤڈ ہے جناب. شاہ پورہ میں اس وقت جو ایک تانہ فیکٹری ہے, اس کا جو رجسٹرڈ ایف آئی آر ہے وہ پنجاب کے 7 ضلعوں سے زیادہ ہے. فیروز والا سرکل کے رجسٹرڈ ایف آئی آرز کی اسٹرینتھ, یعنی نمبر آف ایف آئی آرز فیروز والا میں جو درج ہو رہی, پنجاب کے 21,000. تو آپ دیکھیں پھر آپ لوگ ان سے گلے بھی کرتے ہیں. جی ڈسٹرکٹ سر یہ ان میں سے جو نئے ضلع جن میں سیف سٹی بنا ہے, اس میں ہمارا شیخ پورہ بھی ہے, اور شیخ پورہ میں مرید کے سرکل بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ موٹر وے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ کالا شاخا کتنا زیادہ وائبرنٹ پوائنٹ بن رہا ہے, چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے ہو, چاہے اکنامک زونس کے حوالے سے ہو, تو یہ بھی اس میں شامل ہے. انشاءاللہ سیف سٹی ادھر بھی ہے. سر جیسا کہ تقریباً ایٹ لیسٹ 300 کیس فائل اگر تفتیشی کے کندھے اس بغل میں رکھے ہو, تو کیا وہ تفتیش کرنے کے قابل ہوگا؟ ہیومنلی پاسبل ہے؟ سو چیلنجز بڑھتی ہیں. اس کے لیے پولیس کیا کرتی ہے, پولیس سہارا لیتی ہے آئی ٹی کا, اور پولیس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آئی ٹی پہ ڈپینڈنٹ رہے, جیو فینسنگ پہ ڈپینڈنٹ رہے, سی سی ٹی وی پہ ڈپینڈنٹ رہے, لوکیشنز پہ ڈپینڈنٹ رہے, انالیسس پہ ڈپینڈنٹ رہے, پھر ریکارڈ. آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں, کوئی بھی یہ بندے ہیں یہ کیسے پکڑے گئے, سب سے پہلے جو کرائم ہوتے تو ہم اپنے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرید کے میں جو کرائم کرنے والا ہو وہ گجرانوالہ یا گجرات سے آئے گا. جس طرح آپ میں ایک کمفرٹ زون کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں نے بزنس کرنا ہے تو میں نے کہاں کرنا ہے, ہر بندہ اپنے کمفرٹ زون کو دیکھتا ہے. ان بندوں کو یہاں کرائم کرنے میں کمفرٹ زون تھا, یہاں انہوں نے پہلے کرائم کیا, ان کو تھانے کا پتہ, کچہری کا پتہ, رستوں کا پتہ, لوگوں کا پتہ, سو انہوں نے یہاں کرائم کیا. اب اس کمفرٹ زون کو توڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا رستہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو. ہم ایک پوائنٹ لگا لیں, آپ دیکھیں انہوں نے گچھلی پتہ نہیں کہاں یہیں پہ واردات کی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, ہمارا ریکارڈ اگر کمپیوٹرائز ہوگا تو ہم ایک پوائنٹ لگائیں گے, سیدھا ریکارڈ نکل آ جائے گا. اگر ہمارے پاس بایو میٹرک سسٹم سب کے ہو چکے ہوں گے, جس کو ہم پولیس کی زبان میں CRO بولتے ہیں, تو فنگر میچ ہو جائیں گے. اگر نیکسٹ سٹیپ ہو جائے گا, اللہ کرے ہمارے ملک میں اتنے مسائل آ جائیں کہ ہم سب کے DNA سیمپل اکٹھے کریں. آپ نے ایک بھائی نے بات کی ریپ کی بچیوں کے ساتھ, صدر بوری کے ریپ میں فورینزک ٹیسٹ کے لیے DNA کلیکشن ہوتے ہیں. اگر پہلے سے یہ لوگ ہم سب کا DNA ہو چکا ہو, DNA بینک کی اس کو بولتے ہیں, اور میں بلڈ نکالتا ہوں اس مشین میں ڈالتا ہوں تو سیدھا کنیکٹ ہو جائے گا کہ یہ فلانا کے DNA میں. یہ ناممکن نہیں. اسرائیل کیسے کام کرتا ہے آپ کے سامنے ہے, غزہ وار ٹیکنالوجی بیسڈ ہے. آپ نیو یارک میں سب سے بڑا DNA کا بینک ہے, وہ کس طرح کام کرتا ہے. ہمیں
चैलेंजेस ये है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं. हमारे पास एक ही रास्ता है मेरे भाई. कल को आप देखें ये भाई, आपका नाम क्या है, क्या जिसने बड़ा कैमरा पेनासो, मियाँ जमील के पास एक ही कैमरा है, बाकी सबके पास पॉकेट कैमरे. और कभी 10 साल पहले सबके कंधों पे 2-2 टन के कैमरे होते थे. ऐसे ही था ना. टेक्नोलॉजी गोज ऑन. हमारे पास एक ही रास्ता है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी. अगर ये नहीं होगा 24/7 कर दिया. दूसरा, हम स्टाफ को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी भी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं. तीसरी बात यह है कि हम, आपने देखा PSA SSS की अभी पोस्टिंग हुई थी, इंटरव्यूज़ हुई थी. जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह इसकी तरफ भी चले जाएंगे. तो खिदमत मरकज़ जाते हैं साल में, और उनमें से जो सेटिस्फेक्शन रेशो, आप खुद इंसाफ करें, जब आप खिदमत मरकज़ जाते हैं वहाँ का अमला आपको कैसे मिलता है. वहाँ का आपका काम लर्निंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट. देखिए ये इदारे ग्रो करते हैं, वक्त के साथ ग्रो करते हैं. ये एक दिन में पैदा नहीं होता. खिदमत मरकज़ कितनी सक्सेसफुल स्टोरी है. वहाँ कोई भी अल्लाह के फजल करम से ये नहीं कह सकता कि मुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में पैसे लिए गए, मुझसे ड्राइविंग लाइसेंस में इस वजह. हाँ, ये मैं नहीं कहता कि परफेक्ट है. परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और उसकी खुदाई है. हम ये इंसानों की खुदाई है. ऐसा ही है ना, इंसानों का बनाया निज़ाम है. जो खुदा की खुदाई परफेक्ट है, इंसानों का निज़ाम क्या है, उसमें फॉल्ट्स होते हैं. हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है, आइडेंटिफिकेशन कराना, पॉइंटेशन कराना. मेरा क्या काम है, उसको मुकम्मल कराना. यस, आबादी 50 लाख हो गई, पुलिस उसी हिसाब से नहीं बढ़ सकी. लेकिन आप ये भी देखें कि ये दौर तो मैन पावर का नहीं है, ये दौर तो IT का है. ऐसा ही है ना. इस IT को आप देखें, हम सेफ सिटी में चले जाएंगे. जब सारी चीज़ें सेफ सिटी में हो जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर नाकों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप में से कितने बाहर गए होंगे, बहुत सारे गए होंगे, वहाँ पे आपने पुलिस को नहीं देखा. एडवांस ममालिक है ना, वहाँ पे कैमरा में रिकॉर्डिंग होती. आपने खिदमत मरकज़ की बात की, हम मुरीद के में है, उधर फैसपुर इंटरचेंज पे है, सफदराबाद में बन रहा है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के अंदर बन रहा है. लेकिन अल्लाह के फजल से जब हमारे पास ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी 2-3% है, बाकी टोटल 97% जब फीडबैक है वो सेटिस्फेक्शन आ रही है. तो इट्स अचीवमेंट. इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस में हमने मुरीद के सेलेक्ट किया, ड्राइविंग स्कूल बना रहे हैं. इसी तरह से डिग्री कॉलेज में बना रहे हैं सिटी के अंदर शेखपुरा में, इसमें हमने ये मुरीद के भी इंक्लूड किया. तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो है कि आपकी तवक्कुआत भी पूरा उतरे. ये बॉटल अगर आधा पानी से भरा हो तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बॉटल आधा खाली है. लेकिन मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आधा भरा हुआ है. ये अदम में एतमाद नहीं, ये आप लोगों की हिफाजत है कि आपके साथ ज़्यादती ना. नेक्स्ट. देखिए उसमें मुलजमान 100 अरेस्ट हुए, चालान भी हो चुके हैं, उनके मेडिकल भी हो चुके हैं, जो DNA टेस्ट है. एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, इस वक्त बशमूल मुरीद की एक भी डकैती विद मर्डर केस पेंडिंग नहीं है, एक भी किडनैपिंग फॉरेंसम केस पेंडिंग नहीं है, एक भी रेप केस या गैंग रेप केस या बच्चों के हैरेसमेंट के केसेस पेंडिंग नहीं. परसों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें RPO सब तशरीफ़ ले थे. पूरे शेखपुरा में 2-3-4 पिछले महीनों में, यानी इस साल में 105 काले कॉल्स 15 की कॉल्स चली थी कि हमारे बच्चे मिस हो गए या अगवा हो गए. उनमें से 95 FIR दर्ज हो गई, बकाया फेक कॉल्स थी. 95 में 93 बच्चे पुलिस वापस लेकर आया. ठीक है ना. तो आप ये खुद देखिए, ये जो 2 बच्चों के केसेस है वो जो पेंडिंग है वो भी मियाँ बीवी के केसेस हैं जो कि कोर्ट मैटर्स हैं. तो इस वक्त मैं ये बिल्कुल आपकी इंकरेजमेंट के लिए, आपका ट्रस्ट अर्न करने के लिए पुलिस पे कि इस वक्त हमारा कोई भी मेन केस पेंडिंग नहीं. यस, केसेस होते हैं, पेंडिंग भी बहुत सारे हैं, डकैती भी पेंडिंग है, रॉबरीज भी पेंडिंग है, लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सर इसमें कोई शक नहीं कि मुरीद की पुलिस जो है वो क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब है, लेकिन मुरीद के में एक इशू है सिपा का. सिपा पूरी नहीं है. मुरीद के ज़िला शेखपुरा की आबादी 5 मिलियन क्रॉस कर गई. हमारी टोटल स्ट्रेंथ है 2300, जिसमें से 300 ड्राइवर्स हैं. आ जाते हैं कितने, 2000, जिसमें से 250 एलीट है. बाकी कितने बचते हैं, 17.5. में से 400 कोर्ट्स की ड्यूटीज़ पे लगे हैं. कितने रह गए हैं,
1300 में से जो 200 है ऑफिस ड्यूटीज़ पे लगे, कितने रखते हैं? तो आप खुद देखें कि हम इत कम रिसोर्सेज में आपके लिए क्या कुछ करते हैं। वेरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ठीक है हमारा प्राउड ना। है शेखोपुरा में इस वक्त जो एक थाना है फैक्ट्री एरिया थाना, उसका जो रजिस्टर्ड FIR है वो पंजाब के 7 ज़िलों से ज़्यादा है। फिरोजवाला सर्कल के रजिस्टर्ड FIRs की स्ट्रेंथ यानी नंबर ऑफ FIRs फिरोजवाला में जो दर्ज हो रही पंजाब के 21 अजला से ज़्यादा। तो आप देखें फिर आप लोग इनसे गिला भी करते। थैंक यू सो मच। सर ये मिलिशिया इन्होंने गुजराबाद अच्छा एक घंटा बाद इन्होंने वांडो में एक रक्षा ड्राइवर से डकैती की है और उसको फायर मारा जिससे वो भी बेचारा शहीद हो गया। ये यही बंदे थे। तो इन पे कोई 28 मुकदमे हैं, किसी पे 34 मुकदमे हैं। ये क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता है ये। तो ये दरेग नहीं करते थे फायर मार डकैती के दौरान। ये 3 बंदे थे। ये कहाँ से पकड़े? इधर से पकड़े हमने। ये मैं आपको एक बात बताता तो चलूँ कि ये जो 3 बंदों का गैंग था बेसिकली इनका ये कोई ये नहीं है कि इसका फर्स्ट टाइम कोई वारदात करने का तौर तरीका है। ये बिल्कुल प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल डकैत हैं जो डकैतियाँ करते हैं और डकैतियों के दौरान लोगों को फायर मारते हैं। जिस तरह DSP साहब ने आपको बताया कि उसी रात उन्होंने 2 बंदों को शहीद किया, एक वांडो में और एक इधर मुरीद के में। लेकिन इसका और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 28 मुकदमात में ये चालान हो चुके हैं। इनके अरेस्ट के लिए 2 तरह के एफर्ट्स की गई, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, एक IT सेक्शन को। इनका जो अरेस्ट और मोडस ऑपरेंडाई है, इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये इस वक्त आइडेंटिफिकेशन परेड पे है, बल्कि एक आइडेंटिफिकेशन परेड से वापस भी आ गए। तो बाकायदा इसका शनाख्त हुआ, उन्होंने जो विटनेसेस थे जो उन्होंने इनकी बाकायदा शनाख्त की और ये अभी इस वक्त रिमांड पे चल रहे हैं। इनसे बाकायदा रिकवरीज होगी, वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी होगी, इन्होंने जो लूटी प्रॉपर्टी है उनकी रिकवरी होगी, जहाँ पे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है उस प्लेस की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो एक पूरा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। तो जो एट द एंड ऑफ द डे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी ये जुडिशल जाएंगे और केस फाइल जब प्रिपेयर होगा तो वाई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हम अदालत में प्रेजेंट करेंगे। तो वी आर डेट श्योर कि इंशाल्लाह इनको पूरी सज़ा मिलेगी। अफसरान ने और मुरीद के में जितना ह्यूमनली पॉसिबल हुआ कम वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए दिन रात काम करके उन मुलजिमान को कानून के टहरे में खड़ा कर दिया। यही कमिटमेंट है कि जितने भी क्रिमिनल्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये मेन GT रोड है, गुजरावाला तक है। आप देख रहे हैं कि यह लाहौर से निकलते हुए गुजरावाला और आनवर्ड पिंडी तक ये रोड जा रहा है। ये हमारे लिए ब्लड लाइन का हैसियत रखता है लाहौर के लिए। तो ये मुरीद की पुलिस अपने अफसरान अपने जवानान के साथ दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, स्नैप चेकिंग करते हैं, सर्च ऑपरेशंस करते हैं और क्राइम और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट जारी रखते हैं। तीसरी बात, लाइन ऑर्डर के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट में भी एक मीटिंग इस हवाले से की है कि आने वाले जितने भी दिन हैं वो इलेक्शन के दिन इम्पॉर्टेंट डेज़ आ रहे हैं हमारे लिए। हमारा एक ही कोशिश है और हमारी कोशिश यही है कि लोग अमन और आश्ती के साथ रहें। उनकी जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं, इकनॉमिक जितना भी ह्यूमनली पॉसिबल है इंटेलिजेंस कलेक्ट करके उन मुलजिमान को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि उनको बहुत कम वक्त में उनको अरेस्ट भी किया। ये वाकई एक मुश्किल का केस था इन द सेंस कि इससे खौफ व हरास की एक तो इंसानी लाश बहुत बड़ा नुकसान था, दूसरा इलाके में जो खौफ व हरास फैली वो बहुत ख़तरनाक हद तक फैला। बट पुलिस को शाबाश कि उन्होंने बड़ी हिम्मत से, मेहनत से अफसरान ने, जवानान ने अपने DSP साहब के ताहिर सदीक साहब के ज़रिए निगरानी काम किया। तो ये आज आपके सामने प्रेजेंट भी करना था और आपके सामने मैं ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो शहीद के वालिद हैं, उनसे न सिर्फ यकजहती करना बल्कि अहलियान मुरीद के को ये मैसेज देना कि जब जब भी अल्लाह ना करे आपको तकलीफ़ हो, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है, खुशी, गम, तकलीफ़ें, आसाइशें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके साथ साथ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, मुरीद के पुलिस ने, यही अफसरान थे। और इससे पहले भी आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे बत्ते की कॉल्स होती थी, यहाँ पे